Dear students, welcome on my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. फिजिक्स ऑप्टिक्स की अपन बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द रिफ्लेक्शन फिनोमिनाज। Today we are discussed about the second phenomena related to the light in terms of the refraction of light. तो यहाँ पर अपन refraction of light की बात करेंगे। In earlier when we are discussed about the basic phenomena when a light rays is to be incident upon a particular surface, then it is to be follows the three basic formulations in terms of the RAT, R-A-T, reflections, transmission and absorptions. Here we are considering the second formulation in terms of the transmission. It means when the one light ray are to be incident upon a particular surface, then it is to be moved into the second medium. It means यहाँ से आई because it is to be the surface, तो इसके एक तरफ medium क्या होगा, अलग होगा, and the second side there is the different mediums. There are the two mediums, medium 1 and medium 2. When the light rays are to be incident into a particular medium at a particular surface, then it is to be transmitted into the second medium. It means it is to be going into the second medium. तो ये फर्स्ट मीडियम से आई सेकंड मीडियम में चली गई, देन दिस फॉर्मुलेशन इज टू बी कंसीडर्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट ये तो बेसिक्स था. फर्स्ट थिंग अपन ने बात की कि देयर आर द चेंज ऑफ द मीडियम. इट मीन्स फर्स्ट अपन बात करते हैं कि चेंज ऑफ द मीडियम. इट मीन्स टाइप्स ऑफ द मीडियम आपके पास कौन कौन से पॉसिबल है. तो हियर वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द मीडियम. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मीडियम. फर्स्ट वन इज डेंसर मीडियम, सेकंड वन इज टू बी द रेयर मीडियम. एक तो आपके पास सघन माध्यम होता है और दूसरा आपके पास विरल माध्यम होता है. देन द डेंसर एंड रेयर, दोनों को यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो डेंसर इट इज टू बी रिलेटेड टू द डेंसिटीज. जैसे अपन डेंसिटी से रिलेट करके देखें, इट मींस यहाँ पे आपके पास द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी होगी दे आर टू बी नियर अबाउट टू ईच अदर. तो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली बाउंडेड होंगे. इट मींस the separation between the molecules are to be minimized. But in case of the rarer, जब अपन विरल माध्यम की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या होंगी. द molecules of that particular medium they are to be bounded with a particular bonding, but they are not to be at that particular tightly bound as compared to the denser medium. Denser medium में उनकी bonding, उनका जो in between bonding होगी वो it is to be greater. In case of the rarer उनमें lesser होगी. That's why in case of the rarer the space between the molecules of that particular medium it is to be greater than with respect to the rarer denser medium. तो rarer में आपके पास space ज्यादा होगा particles molecules के बीच में, denser में वो क्या होगा, lesser होगा. That's why we are just to be directly related it with the velocities. It means if you are considering the medium denser, यदि आप denser की बात करते हैं then the velocities are to be lesser. It means उस medium में यदि कोई भी object move करना चाह रहा है, here we are just to be considering the light. It means when the light rays are to be traveling into the denser medium, then their velocities are to be lesser because the separation between the molecules are to be less. तो उनके बीच से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लो स्पीड से धीरे धीरे वेलोसिटी से, एक मिनिमाइज्ड वेलोसिटी से मूव करना होगा. नेक्स्ट, इन केस ऑफ द रेयर द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर टू बी ग्रेटर. It means the spacing between the molecules are to be greater. That's why it is to be quite easy to move that particular light rays as compared to the denser medium. It means here the velocities of that particular light rays are to be greater. In case of the denser, it is to be lesser. That's why in case of the refractions, when we are talking about the refraction of light, there are the few changes. First thing, change into the medium. It means when a light rays are to be incident upon a particular surface from one medium to another medium. It means there is a change of medium. Same medium में नहीं होता. If there is no change into the medium, it means there is no reflection. It is to be in terms of the reflections जो अपन ने last class में discuss किया था. Next, change into the direction. It means if you are considering कि there are the change into the medium, यदि आप denser to rarer जा रहे हैं या rarer to denser जा रहे हैं, तो as per their velocities, their directions are to be changed. It means यदि ये particular कोई surface है medium की
इंटरफेसिंग सरफेस है, इस पर लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ये जो मीडियम है इसके कंपेरेटिवली इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, चेंज होंगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो फॉर्मुलेशंस बनेगी कि जैसे ये सेकंड मीडियम में जाएगी तो पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट रे इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इट इज टू बी चेंज्ड। इसका मतलब आपके पास जो इंसिडेंट रे थी उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड चेंज इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड द वेलोसिटी। इट मींस हियर द इंपॉर्टेंट थिंग, the frequency is not to be changed when we are talking about the reflections। तो वहां पे सिर्फ इंटेंसिटी आपके पास चेंज होती थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी दे आर टू बी सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इट इज टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल आपके पास बेसिक यूनिट है, क्वांटिटी है, किससे रिलेटेड, आपके पास वेव से रिलेटेड। तो ये आपके पास फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में आती है, दैट्स व्हाई इट इज नेवर टू बी चेंज्ड। फ्रीक्वेंसी कभी भी आपके पास इस तरीके की फिनोमिनाज में चेंज नहीं होगी। तो बहुत सी बार इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन विच वन इज टू बी चेंज और विच वन इज टू बी कांस्टेंट। तो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी जो होगी इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन वो आपके पास क्या होगी, इट इज टू बी कांस्टेंट। बट द वेवलेंथ, अब ये नहीं कि वेवलेंथ अपन ऑलरेडी अपन को पता है कि द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ दे आर टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। या फिर अपन बोल सकते हैं f इक्वल टू c अपॉन लैम्डा के टर्म्स में। इट मींस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट, बट हियर द मीडियम इज टू बी चेंज्ड, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर टू बी चेंज्ड, सो देयर इज ए चेंज इनटू द वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी इज टू बी कांस्टेंट बट the wavelength is to be changed. Why? Then as per the basic formulations, the frequency it is to be constant, then it is to be depending upon the velocity of a light into that particular medium. And in case of the reflection phenomena, there is a change into medium, it means the velocities of the reflected ray are to be changed, that's why the wavelength are to be changed. Next, intensity, it is to be always changed, it is also to be changed in case of the reflection, but here in case of the reflection it is also to be changed in terms of the change into the amplitude of that particular wave. Next, velocity, it is to be directly related to the mediums, that's why when our mediums are to be changed, it means velocities are also to be changed. Now we are just to be considering the basic phenomena of the reflection here. It is to be a surface of the separation surface of the in between medium M1 and M2. There are the two mediums M1 and M2. Here we are just to be not to be defining ki M1 is which one is denser, which one is rarer. We are just to be considering in terms of the two cases. First case M1 and M2 denser to rarer, second rarer to denser. But first we will understand about the basic phenomena. It is to be the incident ray upon that particular surface. Again we are just to be constructed in normal. It is to be perpendicular to that particular surface. नॉर्मल पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन इट इज टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। जहां पर आपके पास इंसिडेंट रे सरफेस पे कॉन्टैक्ट करेगी उसी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है। इट इज ए वर्चुअल लाइन। देन आफ्टर दैट दिस इंसिडेंट लाइट रे इज टू बी मूव्स इनटू द सेकंड मीडियम। Then when this incident light ray are to be entered into that particular medium, then there are the two formulations are to be possible in terms of the ray A, in terms of the ray B. या तो वो A की तरफ से होगी या फिर B की तरफ आपके पास डाइवर्टेड होगी। Both the A and B are to be in terms of the reflected rays. दोनों ही आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। बट किस टाइम पे कौन सी होंगी, इट इज टू बी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम्स। That's why here we are just to be considering the cases in terms of the case number 1 and case number 2. The another important thing, it is to be the angle of incident, it is to be the angle of reflection for this A ray, and it is to be the angle of reflection for this B ray. Now the V1 and V2, earlier we have discussed if there is a change into the medium, then as per the basic nature of the medium, their velocities are to be different. That's why the velocities are to be in terms of the V1 and V2. Now mu1 and mu2. It is to be defined in terms of the refractive index of that particular medium. वो भी अपन डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और वो किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द केस नंबर 1. Here first case we are just to be considering M1 is to be denser, M2 is to be rarer. It means our light rays are to be moving from a denser medium to rarer medium. तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सपोज जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दूं, मान लीजिए कि आप एक प्लेग्राउंड में दौड़ रहे हैं
आप एक प्लेग्राउंड में दौड़ रहे हैं और अचानक से आपके पास मतलब प्लेग्राउंड में बहुत सारे क्राउडेड आपके क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे दौड़ रहे हैं और आपको एकदम से खुला स्पेस मिल जाए तो आपकी स्पीड चेंज होगी। डेफिनेटली आप क्या करेंगे, यू आर जस्ट टू बी ट्राइंग टू एक्सपेंडिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को फैलाने की कोशिश करेंगे। सेम वही फॉर्मुलेशंस यहाँ पे होती है, इट इज टू बी द इंसिडेंट लाइट रे, जैसे ही मीडियम में यहाँ पे स्पेस मिला इसको, दिस लाइट रे इज टू बी हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सपेंडिंग इटसेल्फ। एक्सपेंड करेगी तो किसके रेस्पेक्ट में करेगी, इट इज टू बी विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल। देन इन दिस फॉर्मुलेशंस it is to be the reflected ray in terms of the b and it is to be moved away from the normal। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी उसको कैसे जाना चाहिए था, यो स्ट्रेट जाना चाहिए था लाइक दिस डॉटेड लाइन, बट इट इज टू बी एक्सपेंडेड, इट इज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ द लाइट रेज b। बट इन दिस केस इट इज टू बी, this is the angle of incident, this is the angle of reflections। Here the angle of reflection is to be greater than angle of incident, but it is not to be always, it is to be applicable only for when we are moving from denser to rarer medium। If our mediums are to be changed, then this condition is also to be changed। Next the case number 2। In case number 1 we are just to be considering कि our light rays are to be moving from denser to rarer। Now we are just to be changing the mediums, it means our light rays are to be traveled from rarer to denser। Our first medium M1 is to be defined in terms of the rarer medium and M2 in terms of the denser medium। It means ये आपके पास लाइट रेज आ रही है किसमें, रेयर में आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज टू बी गोइंग इनटू द डेंसर मीडियम। तो आप देखिए फॉर्मुलेशंस कैसे बनेंगी। देन यदि फॉर पर्टिकुलर डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें, मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में दौड़ रहे हैं और जैसे आपका लंच टाइम ओवर होता है तो आप किसकी तरफ दौड़ते हैं, टुवर्ड्स योर क्लासरूम। तो जब आप एक खुले मैदान से दौड़ते हुए आप अपने क्लासरूम में पहुंचे, इट मींस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप अपने आप को क्या करेंगे, स्विंग करने की कोशिश करेंगे। सेम फॉर्मुलेशंस, लाइट रेज आराम से आपके पास रेयर मीडियम में एक अच्छी खासी स्पीड से ट्रेवल होती हुई आ रही थी। देन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स जो डेंसर में क्या हो गया, इट इज टू बी मिनिमाइज्ड। दैट्स व्हाई अब उसको अपने आप को उनके बीच से ट्रेवल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज टू बी श्रिंक्ड। तो श्रिंक होगी किस तरफ होगी, इट इज टू बी मूव्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नॉर्मल। तो ये आपके पास इंसिडेंट लाइट रेज थी, ये आ रही थी आराम से, इसको यहां से जाना चाहिए था, बट इट इज टू बी मूव्ड टुवर्ड्स दैट नॉर्मल। इट मींस when the light rays are to be moving from rarer to denser medium, then the reflected ray किस टर्म्स में होगी, in terms of the A ray, and it is to be bended towards the normal। तो ये किधर शिफ्ट होगी, it is to be shifted towards the normal। अब यदि नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, इट मींस नॉर्मली एंगल इतना बनना चाहिए था, नाउ दिस एंगल इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, इट इज टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंट। देन द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, तो यहां पर देखिए जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वैसे ही क्या हुआ, एंगल की वैल्यू रिड्यूस हुई हो गई। इट मींस हियर थीटा इज टू बी ग्रेटर देन थीटा आर। तो यहां पे कंक्लूड करूं तो एज पर द मीडियम्स कौन कौन सी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन देयर इज ए चेंज ऑफ द मीडियम। Change of the medium, there are the two types of the change, one from denser to rarer, second from rarer to denser। First case when we are just to be moving from denser to rarer, it means आपके पास एंगल जो होगा इट इज टू बी इंक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्टेड रे इट इज टू बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस डेंसर में वेलोसिटी लेसर होगी और रेयर में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो एक ग्रेटर स्पीड से क्या करेगी, वो मूव करेगी। in second case when we are considering rarer to denser, it means second case में जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, rarer to denser, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो इंसिडेंट लाइट रेज होगी वो क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। और वेलोसिटीज की बात करें तो रेयर में आपके पास ग्रेटर होगी, डेंसर में लेसर होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। इट इज टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिफ्लेक्शंस। Now we are just to be moving upon the important part in terms of the refractive index। ये डायग्राम अभी यूज आएगा किस टर्म्स में, when we are talking about the laws of the reflection, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। Here we are considering the refractive index। तो पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के टर्म्स में डिफाइन होता है, म्यू1 एंड म्यू2। इट इज टू बी प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल, जो भी आपके पास मीडियम है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इट मींस एग्जैक्टली ये क्या बताता है, इट इज टू बी एक्सप्लेनिंग कि
हाउ इजीली लाइट रेज आर टू बी ट्रेवल्ड इनटू दैट पर्टिकुलर मीडियम। इसका मतलब कौन से मीडियम में लाइट रेज कितना इजीली ट्रेवल कर सकती है, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। इट इज टू बी जनरली डिफाइंड रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज टू बी इक्वेटेड बाय c अपॉन v। हियर द c, इट इज टू बी द स्पीड ऑफ लाइट इनटू द वैक्यूम। अपन सबको पता है c स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम, v इट इज टू बी द स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मीडियम। इट मींस आप स्पीड ऑफ लाइट को ही कंपेयर कर रहे हैं, एक तो जो आपको ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इनटू द वैक्यूम, सेकंड उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई अपन इसको कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मीडियम। एग्जैक्टली रेशियो के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बट बी केयरफुल कि ये जो सारी फिनोमिना होती है इट इज टू बी इनटू द लैबोरेटरीज। आप प्रैक्टिकलिटी में ठीक है अपन कुछ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को यहाँ पे लर्न करेंगे, बट यदि आप प्रैक्टिकलिटी में मेजर करना चाहते हैं तो आपको लेबोरेटरीज में ही मेजर करना पड़ेगा विद द लॉट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा मिला, एक स्केलर क्वांटिटी मिली। नाउ इट इज टू बी द यूनिट प्लेस एंड द डायमेंशन लेयर। फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि विच क्वांटिटी इज टू बी यूनिटलेस और द डायमेंशनलेस, कि आपको कोई भी 4 क्वांटिटीज गिवन होंगी, उनमें से कौन सी डायमेंशनलेस है कौन सी यूनिटलेस है। तो जहां भी अपन एक रेशियो की बात करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। हियर द रेशियो ऑफ द स्पीड अपॉन स्पीड। नाउ सी तो आपके पास कांस्टेंट है, डिपेंडेंसीज किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हियर वी आर जस्ट टू बी डिफाइनिंग कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो म्यू आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल v है, एंड अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेलोसिटी फॉर द डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि v dense, v rarer is to be greater than v denser, implies that यहाँ पे फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, mu rarer is to be lesser than mu denser। तो आपके पास mu rarer जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, mu denser जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर, क्योंकि ये वेलोसिटी के क्या आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस पर्टिकुलर मीडियम में कोई भी लाइट रेज यदि इजीली ट्रेवल कर सकती है, इट मींस उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही लेसर होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके पास रेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर होगा और आपके पास डेंसर के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी। नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द सम टिपिकल वैल्यूज। जो कुछ टिपिकल वैल्यूज की बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली अपन यूज करेंगे, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द म्यू वैक्यूम इक्वेटेड बाय 1, म्यू एयर it is to be equated by 1.031 and it is to be nearly about equal to 1। जो अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो we are just to be using in the formulation of 1। Next, the refractive index of the water, it is to be defined in terms of the 4/3 equated by 1.33। तो वाटर के लिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.33। म्यू ग्लास, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, मोस्ट कॉमनली अपन ग्लास स्लेब को यूज करेंगे, ग्लास, वाटर, एयर, यही 3 क्वांटिटीज होंगी जिनसे रिलेटेड अपन को न्यूमेरिकल से मिलेंगे। तो एयर के लिए तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज टू बी इक्वल टू 1। फॉर वाटर इट इज टू बी इक्वल टू 4/3 एंड फॉर ग्लास इट इज टू बी इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। नाउ म्यू डायमंड, डायमंड के लिए कितना होगा, इट इज टू बी इक्वल टू 2.4, इट इज टू बी द मैक्सिमम, इट मींस द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4, इट इज फॉर द डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ग्रेटेस्ट होता है और इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द 2.4। नेक्स्ट यदि अपन बात करें द यूनिट्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, earlier we have discussed it is to be the unitless and the dimensionless quantities, that's why there is no unit of it। Now the important for the board examination point of view, the dependencies of the mu। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज टू बी डिपेंडिंग अपॉन, किस पर डिपेंड करता है। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द 3 डिपेंडेंसीज। फर्स्ट डिपेंडेंसी इज इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। Earlier we had discussed about when a light rays are to be incident upon a particular surface, it is to be transmitted into the second medium. It means there is a change of the medium, and in case of the reflection, it is to be always a change of medium. That's why due to the change of medium, there is a change into the velocity, and if the velocity are to be changed, it means as per the nature of the mediums,
the refractive index is also to be changed. And earlier we are just to be derived in formulations of the mu d greater than mu r. डेंचर मीडियम का आपके पास म्यू जो होगा इट इज टू बी ग्रेटर देन द म्यू ऑफ द रेयरर, मतलब विरल माध्यम का आपके पास सगल माध्यम का आपके पास विरल माध्यम की तुलना में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर होगा. द नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस इट इज टू बी डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. अर्लियर वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी इज टू बी कांस्टेंट एंड अदर पैरामीटर्स लाइक वेवलेंथ, velocity and the intensity are to be changed. Here we are just to be considering the dependencies of the mu upon the wavelength, because earlier we have discussed derived the formulations mu equal to c by v. If c is to be taken out the constant, then mu is to be inversely proportional to v. And earlier we have discussed about the basic formulations f equal to c by lambda. That's why if f is to be constant, then the lambda is to be directly proportional to the velocity. That's why here the mu is to be inversely proportional to the lambda. तो वेवलेंथ चेंज होने के साथ उसका म्यू जो होगा इट इज टू बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ द वेवलेंथ आर टू बी इंक्रीजेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिक्रीजेस. इफ द वेवलेंथ इज टू बी डिक्रीजेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी इंक्रीजेस. And the next one, in terms of the temperature of the medium, if we are just to be changing the temperature of the medium, normally if we are considering the glass and the water and we are just to be performing any experiment under the particular lights or the under particular cell lights, then after particular time the temperature of that particular medium is to be changed. That's why due to the change of the medium, the refractive index of the medium it is to be inversely proportional to the mu. If we are just to be increasing the temperature, then the refractive index is to be decreases. If the temperature is to be decreases, then the refractive index is to be increases. It means most commonly आप देखें तो म्यू के जो भी रिलेशंस हैं, they are to be in terms of the inversely proportional. चाहे वो वेलोसिटी की बात हो, वेवलेंथ की बात हो या टेम्परेचर की बात हो. These are the dependencies and the few constant values related to that particular refractive index. Next we are considering the refractive index due to the change of the mediums. In this particular diagrams, we are considering the basic formulations in terms of the mu1 and mu2. It means light rays are to be moving from one medium to another medium. It means there is a change into the medium and their refractive index are to be different. Then that's why we are just to be trying to find out the relation between their refractive index. If you are having the two mediums, then it is to be defined in terms of the mu2 1 or mu1 2. Then the mu21 it is to be defined in terms of the mu21 की फॉर्मुलेशंस आपके पास कितनी होगी, mu2 upon mu1. It is to be defined upon mu2 upon mu1 and it is to be in terms of the mu1 upon mu2. Clear? It means here we are just to be considering the few formulations. mu के respect में अपन एक generalized formulations पढ़ेंगे. If we are just to be taking out mu12 into mu21, it means it is to be mu2 upon mu1 into mu1 upon mu2. mu21 क्या है? It is to be the refractive index of the medium 1 with respect to 2. It is to be the refractive index of the medium 2 with respect to 1. क्लियर? जो फर्स्ट मीडियम होगा आपके पास, जो इंसिडेंट होगी वो हमेशा किसमें होगी, mu1 के रेस्पेक्ट में होगी. क्लियर? तो जो mu1 होगा वो हमेशा आपको उसी का लेना है जिसमें से लाइट रेज आ रही है और mu2 उसका लेना है जिसमें आपके लाइट रेज जा रही है. क्लियर? इट मीन्स जनरली कंसिडरेशंस में अपन mu21 को कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द mu2 अपॉन mu1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. देन mu1 is to be cancelled out with mu1, mu2 is to be cancelled out with mu2. We are getting out the 1. Similarly we can also write down mu12, then it is to be the mu23. 1 से 2 में चला गया, 2 से किस में चला गया, 3 में चला गया and it is to be in terms of the mu31. इसको भी यदि अपन सॉल्व करेंगे इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 1, क्योंकि mu12 जो होगा वो किस टर्म्स में डिफाइन होगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द mu1 अपॉन mu2, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द mu3 अपॉन mu2, सॉरी इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द mu2 अपॉन mu3 एंड इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द mu3 अपॉन mu1. नाउ mu1 mu2 mu3 then they are to be cancelled out and the final concluded. It means कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक
लाइट रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड में गई, सेकंड से थर्ड में गई, देन एज पर द फॉर्मुलेशंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो जो अपन आगे डिटेल्स में कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट।